वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट मॉलिक्यूलरिटी. What is molecularity? Number of reacting species colliding simultaneously during a chemical reaction. During a chemical reaction. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस समय जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट है वो जो कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी. तो नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. Molecularity of reaction is always a whole number. Now we understand this by the following example. Ammonium nitrate NH4NO2. When it decompose, it form nitrogen and water. Here only one molecule of the reactant, that is ammonium nitride. It means its molecularity is 1. Molecularity कितनी है इसकी? 1. Molecularity बराबर. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. 2HI it decompose into hydrogen and iodine. Here two molecule of hydrogen iodide are reacting and are colliding simultaneously during the chemical reaction. It means its molecularity is 2. FeCl3 ferric chloride plus stannous chloride SnCl4. It gives rise to 2FeCl2 ferrous chloride and stannic chloride. Here 2 molecule of FeCl3 and 1 molecule of SnCl2 are colliding simultaneously during a chemical reaction. It means its molecularity is 3. Its molecularity is 3. Now next example we take potassium chlorate KClO3 plus 2MnO2. It gives rise to potassium permanganate 2KMnO4 plus O2 plus Cl2. देखिए ये आपका MnO2 है, सॉरी, तो ये बन गया आपका Cl. Look here, 2 molecule of potassium chloride, 2 molecule of MnO2 are reacting and colliding during the chemical reaction. It means its molecularity is 4. So these are the examples to describe the molecularity of a reaction. Now we are going to differentiate between molecularity and order of the reaction.
here we have to write order of the reaction. Order of reaction. Here we have to write molecularity. In first point, we have to write definition. What is the definition of the order of the reaction? Sum of power of the reacting species in rate law expression. It is the sum of power. It is the sum of power. It is the sum of power of reacting species in rate law expression. In rate law expression. ठीक है जी, जैसे इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, योगी की डेफिनेशन एग्जांपल लेके तो देता हूं मैं यहां पर, ठीक है जी, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, ठीक है, इट गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो इसका जो रेट लॉ के हिसाब से हम लोग लिखेंगे बेटे, इसका जो रेट लॉ है रेट, इसका रेट जो होगा दैट वुड बी k concentration of A की पावर A concentration of B की पावर of small b। नाउ ऑर्डर क्या हुआ, ये जो पावर है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं A प्लस B, ये इसकी पावर ऑर्डर होगा। नाउ मोलिकुलरिटी, इट इज द नंबर ऑफ reacting species, number of reacting species, it is the number of reacting species simultaneously during a chemical reaction, during a chemical reaction, ठीक है। look here, H2 plus Cl2, it give rise to 2HCl। यहाँ one molecule of H2, one molecule of Cl2 are reacting and colliding simultaneously during a chemical reaction। its molecularity कितनी है बेटे इसकी, इसकी जो मोलिकुलरिटी हुई वो 2 हुई। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज, यहां ये हमेशा मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। इट मे बी फ्रैक्शन इन सम केसेस, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, परंतु मोलिकुलरिटी ऑलवेज, इट इज ऑलवेज वो नंबर। मोलिकुलरिटी जो है वो होल नंबर होती है, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है ना, परंतु ये कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है क्या आ सकती है आपकी फ्रैक्शन में आ सकती है, जैसे 3/2 4/5, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है। नाउ इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, it cannot be zero। मोलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, क्या नहीं होती बेटे, मोलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। आगे देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट,
It depends upon temperature and pressure. Order of the reaction depends upon temperature and pressure. But look here, it does not depend. It does not depend upon temperature and pressure. जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, जब उसको हम डिटरमाइन करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. और मोलिकुलरिटी इट इज ए concept of theoretical. It is a concept of theoretical. So it was the difference between order of reaction and molecularity. आगे चलते बेटे नेक्स्ट. Mathematical expression of zero order reaction and first order reaction and half life period of zero order reaction and first order reaction. चलते हैं भाई बेटे. जीरो order reaction. Consider equation A2 product. ठीक है जी. अब इस रिएक्शन का हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे इन टर्म ऑफ जीरो वेक्टर. इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म ऑफ zero order reaction. Look here, minus dt. This is instantaneous rate. अब इसका रेट कांस्टेंट यहाँ पे k हो गया बेटे. अब इन टर्म ऑफ द रेट ला में लिख देते बेटे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0. और आपको पता है बेटे, जब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k इंटू 1. और माइनस dA बराबर k dt. इस माइनस को उधर ले जाएंगे, बराबर माइनस k dt. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड से. और इंटीग्रेशन के बारे में आपको जो है मैथमेटिक्स के सर अच्छी तरह समझाएंगे. मैं देख रहा हूं कैसे कर रहा हूं बेटे. इंटीग्रेटर में क्या होता है, डी होता है या डेल्टा होता है, वो सारे जो है रिमूव हो जाते हैं. तो जब इस रिएक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका डी जो है खत्म हो जाएगा बेटे. ये केवल रह जाएगा ए इक्वल टू माइनस के टी. ये भी डी जो है रिमूव हो चुका है, प्लस आई. ये क्या है, दिस ये इक्वेशन हो गया आपका. दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट.
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे? इफ a इज इक्वल टू a नॉट और t इज इक्वल टू 0। अब इस ये वैल्यू जो है इसमें रखते हैं बेटे, a नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू 1 प्लस i, सॉरी 1 नहीं है बेटे 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 है। तो ये क्या हुआ बेटे? i इज इक्वल टू आ जाएगा a नॉट। तो i की वैल्यू ये आ गई बेटे। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, फर्स्ट इस i की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते बेटे, a इज इक्वल टू माइनस kt प्लस a नॉट प्लस a नॉट। ठीक है जी। अर्थात kt को यहां ले बेटे, kt बराबर a नॉट माइनस a। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन। नाउ k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t। तो ये आपका फॉर्मूला हमेशा जब भी आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉर्मूला पुट अप करोगे, अगर आपको k निकालना है t निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, हमेशा लर्न रखना बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। अब हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ये समझा देते बेटे। हाफ लाइफ पीरियड भी, हाफ लाइफ पीरियड पहले डेफिनेशन देखो बेटे। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a reaction is the time in which the rate of the reaction become half। जिसमें रिएक्शन का जो रेट हो जाता है वो हाफ हो जाता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अर्थात इन केस ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड, in case of the half life period, the concentration of the reactant reduced to half. The time, half life period, it is the time in which concentration of the reactant is reduced to half। वो टाइम जिसमें रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। उस टाइम को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए क्या होता है बेटे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटे, K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन T। तो हाफ लाइफ पीरियड को डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय T1/2। तो इसको हाफ लाइफ पीरियड कैसे लिखेंगे? T1/2 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी? A नॉट, वो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटे? हाफ रह जाएगी, माइनस 1/2 A नॉट
आप कहोगे सर आपने यहाँ पर ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड में ये है कि जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो टाइम जिसमें वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कितने हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसको जो है हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो टाइम जिसमें ए नोट की कंसंट्रेशन जो है हाफ हो गई है अपॉन के अपॉन के, तो कितना आ जाएगा बेटे, टी 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा, ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा डूइंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी आगे चलेंगे बेटे, इसको बाद में करेंगे, पहले इतना करो बेटे जीरो ऑर्डर वाले, ठीक है जी। तो आपके समझ में आ गया बेटे व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इट इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो गई है, उसको क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। अब ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अगर मैं इसमें से टी निकालूं तो के नीचे आ जाएगा बेटे, तो हाफ लाइफ पीरियड को T1/2 से हमने जो इसको डिनोट किया जाता है, तो A नोट माइनस 1/2 A नोट, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, A नोट। अब वो जो टाइम है जिस टाइम में ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 1/2 हाफ हो गई है, उसको क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब तक हमारे ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं बेटे, भी आपको ये अपनी माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, चलो मैं यही क्वेश्चन आपसे पुट अप कर देता हूं। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन in which the rate of the reaction depend upon the concentration of one reactant। वो रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्शन का रेट जो है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंड करता है, उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, a chemical reaction in which the rate of the reaction is independent of concentration of the reactant। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है will depend upon the concentration of one reactant। okay, now consider a reaction A2 प्रोडक्ट। ये आपकी रिएक्शन है बेटे, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका देखिए बेटे, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू के। अब की बार मैंने यहाँ पर ये जीरो नहीं लिखा बेटे, जीरो का लिखूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, a की पावर इसका मतलब 1 है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो यहाँ क्या होगा बेटे, माइनस dA, इस a को नीचे लिया था बेटे मैं, कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर के dt, ठीक है जी। अब इसका भी क्या करते हैं बेटे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बेटे यहां पर, इंटीग्रेटिंग ए नॉट बराबर, इंटीग्रेटिंग ए नॉट बराबर के टी प्लस आई,
ठीक है, वो ये आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ इफ, ये इक्वेशन आपकी 1 आ गई बेटे, इफ E is equal to A नॉट और T is equal to 0, तो फिर क्या होगा बेटे, माइनस इंटीग्रेशन A is equal to K इंटू 0 प्लस ओ, यहाँ A नॉट आ जाएगा बेटे। तो I यहाँ पर I बराबर क्या होगा बेटे, I बराबर होगा माइनस इंटीग्रेटिंग A नॉट, putting the value of I, putting the value of I in equation first, तो क्या होगा बेटे, ये इक्वेशन है, यहाँ रखो आपने माइनस इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी, बराबर के टी माइनस माइनस, ये आ जाएगा बेटे इंटीग्रेटिंग ए नॉट, ठीक है जी। अब इसको हम कैसे करते हैं बेटे, देखिएगा, इंटीग्रेटिंग ए नॉट इंटीग्रेटिंग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, ठीक है जी। अर्थात क्या होगा बेटे यहाँ पर, K is equal to 1 by T integrating A naught upon A, taking logarithm, taking logarithm, logarithm। देखो बेटे, जब भी हम कोई इंटीग्रेशन का क्या लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, तो इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है, और एक वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाती है, उस वैल्यू का नाम है 2.303, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी, और इंटीग्रेशन की जगह आ गया लॉग ए नॉट अपॉन ए। This is initial concentration, this is final concentration. Now if, ये भी है फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बेटे, if initial concentration A naught is equal to A and in time T its final concentration A is equal to A minus X, then फॉर्मूला क्या होगा बेटे, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A minus X। तो ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज होगा, ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज होगा जब आप जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते बेटे, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इन केस ऑफ first order reaction, half life period in case of first order reaction, that is T 1 by 2 is equal to 0.693 अपॉन K। ये फॉर्मूले भी आपके सामने आएगा कहां बेटे, ठीक है जी, देख लीजिएगा बेटे क्या आएगा, चेक कर लीजिएगा,
-3/K. This is the formula for half life period in case of the first order reaction. इसको बेटे इसको कॉपी आउट करो. हो गया बेटे. चलो आगे चलते बेटे. Now we will attempt some of the important numerical related to these formulas. Take the sum of the numerical for a concentration number. Question 1. For a reaction A to B, the rate of the reaction become 27 times. When the concentration of A, when the concentration CONCN, this is concentration. When the concentration of A is increased three times. What is the order of reaction? What is the order of reaction? What is the order of reaction? ये आपका क्वेश्चन था बेटा. फॉर ए रिएक्शन A to B, इसको लिखते बेटे, सॉल्यूशन करते इसका कैसे बेटे. ये रिएक्शन है A to B, इसका रेट लिखते हैं बेटे. कैसे लिखते हैं? रेट R इक्वल टू K. कौन सी रिएक्शन है? हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको ऐसे लिखते हैं. Now look at when the concentration of become 27 times. The rate of the reaction become 27 times when the concentration of A is increased 3 times. यानी कि 27 आ हो गए बराबर के जब कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की. ये रिएक्टेंट A है, ये कितनी होगी? 3 टाइम. यहाँ पर जो है यहाँ लिख दीजिएगा इफ A is equal to 3A, तो रेट क्या होगा? ये होगा. तो एक इक्वेशन आपकी ये होगी, एक इक्वेशन आपकी ये होगी डिवाइडिंग टू बाई 1, 27R अपॉन R के 3A अपॉन KA. ठीक है, ये कितना रहेगा बेटे? 27. वो कितना रह गया? 3A. ठीक है जी, वो केवल 3 रह गया बेटे वहां पर. तो यहाँ 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, यहाँ ये 3 की पावर n. तो n किसके बराबर हुआ? ये n इज इक्वल टू 3. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 3. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ भाई? 3 हुआ. देखो बेटे, चेक करो उसको अच्छी तरह.
नहीं आया बेटे, समझो को अच्छी तरह बेटे। फॉर ए रिएक्शन A to B द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स। इसका मतलब रेट नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आप ऑर्डर जो है n लिख सकते हो बेटे, कुछ नहीं पता ऑर्डर कितना है इसका, ठीक है जी। तो यहाँ पर n और यहाँ पर n। अब यहाँ का भी वो ठीक हो गया बेटे, ठीक है जी। 3 की पावर है तो वो n किसके इक्विवेलेंट हुआ, 3 के इक्विवेलेंट हुआ ना, तो इट मींस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ 3। दोबारा सुन लीजिए बेटे, एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है, उसका रेट कितना हो जाता है 27 टाइम हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर मींस पता नहीं कौन से ऑर्डर की है, 27 टाइम हो जाता है उसका रेट, जब उसकी कंसंट्रेशन जो है 3 टाइम बढ़ा देते हैं। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, an से n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर n रह जाएगा। तो यहाँ रह गया बेटे 3 की पावर n। जब ये 3 की पावर n है, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर n है, तो 27 को इस तरह से लिखते हैं क्योंकि वो भी पावर में आ जाए। तो ये हमने 27 की पावर हमारे पास ये बन गई 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है ये दोनों का जो है क्या बेटे, ठीक है ना, दोनों का सेम है, तो ऊपर जो है पावर जो है इसकी 3 है, ये n है, तो n इक्वल टू 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ 3। ओके, समझ लीजिए बेटे।